Hello children, welcome to the EVS chapter 13, A River's Journey. Part 2, page number 104. Have a look here. Get information about river, pond or puddle nearby your village or city. आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके गांव या शहर के नज़दीक के नदी, तालाब या गड्ढा और पोखर की जानकारी लेनी है. Let's see this question. Are there any changes in their water during summer, rainy season and in winter? समर, विंटर और मानसून के दौरान उनके पानी में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं? We can say yes. Water level decreases a lot during summer and during winter it is medium high and during the rainy season it is the highest. Now this question, what are the different kinds of aquatic animals found there? उसमें कौन कौन से जलीय जानवर देखने को मिलते हैं? पानी में भी कई तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं. Yes, aquatic animals like fish, frogs, water snakes, turtles, etc. are found there. Sometimes crocodiles are also found there. What kind of trees and plants grow around it? उसकी चारों ओर किस प्रकार के पेड़ या पौधे उगते हैं? Plants like grass, various bushes and shrubs grow around the river, lake or pond. Apart from these, tall trees have also grown around it. What kinds of birds come there? वहाँ पे किस प्रकार के birds आते हैं? Birds like ducks, egrets, storks, cranes, etc. come there. Have you ever seen, heard or read about floods? Where? क्या आपने कभी भी पूर देखा है या उसके बारे में सुना है या पढ़ा है? कहाँ? Yes, I have heard about the destructive floods that hit Kedarnath in TV news. What happens when there is a flood? पूर आता है तब क्या होता है? When there is a flood, the water of the river overflows its banks and enters the surrounding fields, villages and cities. This causes a lot of damage to crops, houses, people and their property. Transportation is also affected due to roads being flooded with water. Have you seen dirty water in a river or pond? Where? आपने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है? कहाँ? ये आपको बताना है कि गंदा पानी देखा है तो कहाँ देखा है? How would you know if the water is dirty? If the water looks clean, can you be sure that it is drinkable? पानी गंदा है यह आपको किस तरह पता चलता है? यदि पानी शुद्ध दिखता है तो वह पानी पीने लायक है. When water is dirty, it looks yellowish or blackish and it stinks. We can also see insects and mosquitoes in such water. Also, it is not necessary that water which looks clean is really fit to drink. This is because even though it looks clean, there may be germs in it. Drinking such water can spoil our health. How does water become dirty? पानी किस तरह गंदा या अशुद्ध होता है? You saw in the picture that as the river flowed near many villages, towns and city, the people used the river water for different purposes like washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Thus, the river is not the same like when it was in the beginning.
Many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. आपने पिक्चर में देखा कि जब नदी गांव या शहर के नज़दीक से बहती है तब लोग नदी के पानी का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, राइट? जैसे कि कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन साफ करना। इस वजह से नदी पहले जैसी नहीं रहती है। ऐसी कई एक्टिविटीज़ पानी को गंदा बनाती है। नदी में बहता पानी कई जगहों पे से गुजरता है, इसलिए बदलता रहता है। तालाब और बड़े गड्ढे जो होते हैं ना, पोखर में भी पानी इसी कारण गंदा हो सकता है। From where do you get your drinking water? A river or a lake? Do you think that, like the river in the picture, your river or lake can also be affected? आप जो पानी पीते हैं ना, तो आपके पीने का पानी कहाँ से प्राप्त होता है? नदी में से या तालाब में से? क्या आपको लगता है कि आपकी नदी या तालाब का पानी पिक्चर की नदी के पानी की तरह गंदा ही होगा? This answer you have to write yourself. Take help of your parents. Do this. What we have to do? Let's see. For this activity, you will need to bring certain things from your home. You will find most of these in the kitchen. ये एक्टिविटी आपको करनी है और यह एक्टिविटी के लिए आपको थोड़ी चीज़ें अपने घर से लानी होंगी। आपको यह सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? आपके किचन में से मिल जाएगी। सॉल्ट, sugar, हल्दी, flour, baking soda and दाल, about half a tablespoon each. Lemon juice, soap water, शरबत, oil, about half a tablespoon each and 5 or 6 glasses or bottles. ये सारी चीज़ें आपको आधा चम्मच लेनी है और यहाँ पर भी जो बताई है चीज़ें वो भी आधा चम्मच लेनी है और 5 और 6 ग्लासेस और बोतल्स लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपके किचन में से मिल जाएगी ना? यस। व्हाट विल यू डू? अभी आप क्या करेंगे? फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच ग्लास और बोतल विथ वाटर. Make sure that all have the same amount of water. Now, one by one, put each of the things in the water. For example, haldi in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass. Stir it with spoon and see what would happen. Write your observation in the table. क्या करना है? ग्लास या बोतल को आधे तक पानी से भर लीजिए। सब में कैसा पानी होना चाहिए? एक समान पानी होना चाहिए। इसका आपको खास ध्यान रखना है, ओके? अब पानी भरे हुए ग्लास या बोतल में एक एक चीज़ को चम्मच से अंदर डालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले ग्लास में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में सोडा। उसे चम्मच से हिलाइए और देखिए कि क्या होता है। आपके ऑब्जर्वेशंस दिए गए टेबल में बताने हैं, लिखने हैं। दिस इज योर टेबल ऑन पेज नंबर 106. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? पुट राइट मार्क इन द राइट प्लेसेस. आपने क्या ऑब्जर्व किया? सही जगह पे आपको राइट टिक करनी है। सो लेट्स बिगिन. थिंग्स मीन्स चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वह डिजोल्व इन वाटर, पानी में पिघलती है। डिड नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में नहीं पिघलती है। कलर ऑफ वाटर चेंजेस, पानी का कलर चेंज होता है। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, पानी का कलर चेंज नहीं होता है। सुगर, सुगर जो है जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? डिजोल्व इन वाटर। एंड कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, शुगर जब पानी में डालते हैं तो वो पिघल जाती है पर उसका कलर तो वैसा का वैसा ही रहता है। सॉल्ट, सॉल्ट पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पानी में पिघलता है और पानी का कलर चेंज भी नहीं होता है।
लेमन जूस, वो भी पानी में पिघल जाता है, मिक्स हो जाता है और पानी का कलर चेंज नहीं होता है। हल्दी, उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो भी मिक्स हो जाएगी, पिघल जाएगी, पर पानी का कलर चेंज होता है, येलो हो जाता है ना। सोप वाटर, वो भी पानी में मिक्स हो जाता है, पिघल जाता है और पानी का कलर चेंज हो जाता है। फ्लोर, वो जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो पिघलता नहीं है और पानी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। दाल, वो भी पानी में नहीं पिघलेगी और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। शरबत, वो पानी में मिक्स हो जाता है, पिघलता है, कलर ऑफ वाटर चेंजेस, यस। कुकिंग सोडा, वो भी पानी में पिघल जाता है, मिल जाता है, बट कलर चेंज नहीं होता है पानी का। ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तेल और एनी अदर, उसमें क्या होता है, जब तेल जो है वो पानी में मिलता है तो वो ऊपर तैरता है, मिक्स नहीं होता है, ओके, और उसका पानी का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है क्योंकि तेल तो ऊपर ही रहता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस टेल, अब यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आपको बताना है, क्या बताना है, लेट्स सी। डू ऑल थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, सभी चीजें पानी में पिघलती है, नो, ऑल थिंग्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज एज ईच मटेरियल इज एडेड, नो, हर एक चीज पानी में मिलाने से पानी का कलर चेंज होता है, नो, the color of the water does not always change. Did oil dissolve in water? How can you say whether it has dissolved or not? तेल पानी में मिल गया, वह पानी में मिला या नहीं, यह आप कैसे कह सकते हैं? No, oil did not dissolve in water. It floated on top of water. We can easily see it. Color of the water may not change even after some things are dissolved in it. Would you say that these are absent in water? कई चीजें पानी में पिघलने से पानी का कलर चेंज नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि पानी में उसकी उपस्थिति नहीं है। Color of the water may not change even after some things are dissolved in it, but they are still present in water. For example, when salt or sugar dissolve in water, its color does not change. However, the changed taste of the water tells us about the presence of salt or sugar. Imagine how it would be if things like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc. could not dissolve in water. इमेजिन कीजिए कि सुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत जैसी चीजें पानी में पिघले नहीं तो। If things like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc. could not dissolve in water, we would not have been able to taste so many good food items. Imagine how it would be if things like stones, chalk, plastic and garbage would dissolve in water. अब यहाँ क्या इमेजिन करना है, इमेजिन कीजिए कि स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज जैसी चीज़ें जो है ना वो पानी में पिघले तो। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इफ थिंग्स लाइक स्टोन्स, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजोल्व इन वाटर, such bad things would enter our bodies through the water we would drink and we would suffer from a number of diseases. Think, सोचिए, do all the things dissolve easily in water? From them many things like stones, plastic, chalk, garbage etc. dissolve in water, then what would happen? Some of these can be very harmful for our body.
Hence, it is important that we purify water before drinking it. One of the best ways to do this is to boil the water. If for some reason this cannot be done, can you think of some other ways to clean water? सभी चीज़ें सरलता से पानी में पिघलती हैं। उनमें से कई चीज़ें जैसे कि स्टोन्स, प्लास्टिक, चॉक, गार्बेज एट्सेट्रा पिघले तो क्या होगा? कई चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, इसलिए पानी पीने से पहले उसे क्लीन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। उसे उबालना सबसे बेहतरीन उपाय है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो सकता है तो आप कोई और तरीका सोच सकते हैं। अगर सभी चीज़ें पानी में पिघल जाएगी जैसे कि स्टोन्स, प्लास्टिक, चॉक, गार्बेज सब भी पिघलेगी तो क्या होगा? इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके लिए हमें क्या करना है कि पानी जो है वो उबाल के पीना है। सबसे बेहतरीन तरीका है उबाल के पानी पीने का। पानी का शुद्धिकरण करना है और बाद में पीना है। तो बेस्ट वे कौन सा है? बॉयल द वाटर। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप और कोई भी तरीका सोच सकते हैं। कौन से तरीके होंगे शुद्ध पानी के लिए? डू यू नो द वेज टू क्लीन द वाटर? Let me tell you some other ways to clean the water. One is boil the water. Okay. Methods to clean drinking water. Boiling is the first choice. It is very good for all. It kills the germs. Okay. Then filtering, adding alum means fitkari. Adding water purification tablets means water chlorination means water chlorination करना है। Modern method of purifying water is aquaguard or RO, reverse osmosis and distillation, iodine addition, solar purification, clay vessel filtration. Nowadays सभी के घर में एक्वागार्ड या आरओ सिस्टम तो रहता है ना। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाइड इन योर हाउस? आपके घर में पीने का पानी किस तरीके से प्योरीफाई मीन्स क्लीन किया जाता है? फाइंड आउट द डिफरेंट वेज ऑफ प्योरीफाइंग वाटर एट होम। घर पे पानी को शुद्ध करने के अलग अलग तरीके जानने हैं आपको। Draw pictures showing any two ways of purifying the water. What you have to do here? आपको यहाँ क्या करना है? पानी को शुद्ध करने के कोई भी दो तरीके हैं, उसके पिक्चर ड्रॉ करने हैं। ओके, कोई भी दो तरीके। So dear children, you must remember that water is the nectar of life. Water itself is life. Okay, save water and water will save us. Our life is possible only due to the existence of rivers. It is our primary duty to keep rivers clean. So save water, save earth, save lives. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.